Assalamu alaikum. Hope you are all fine. This is your English textbook of class 3. This is the video about all the work that you have done in your last classes. So this is your recall video. So all of you open your textbook, unit number 1, Ameen and the. This is your unit number 1, Ameen and the eggs. And in this chapter we learned the story about Ameen and the eggs. So first of all I'll recall the story that what will happen into this story. So in this story here is a man, Ameen. He is the main character of the story, Ameen, and the eggs, and his story is about his boiled eggs. Remember in your mind students, boiled eggs. Okay? Ameen is a person who lost all his crops in a drought. वो जो अपनी तमाम फसलें होती हैं वो कहत साली में खो देता है. He decided to look a new village for their work. ठीक है. So he left the village and he find a new village for their work. वो अपना गांव छोड़ देता है और नए गांव में जाके काम तलाश करता है. So after 7 years when he and before left the village he bought a hard dozen boiled eggs from a merchant and promised to pay him later. तो वो जाने से पहले क्या करता है कि एक मर्चेंट से, एक बिजनेसमैन से बॉयल एग, उबले हुए 1 दर्जन अंडे जो है वो उधार लेकर जाता है कि जब मैं वापस आऊँगा तो आपको वो पैसे दूंगा. सो आफ्टर 7 years when he came back, now he was a rich man and now merchant heard about this man. He came and demanded for a 500 silver coins against just 1 dozen eggs. जब सबको पता लगता है कि वो एक अमीर आदमी हो गया, वो मर्चेंट वापस आता है अपने उस अमीन के पास और उससे अपने जो उसने उसको जाते वक्त 12 एग्स बॉयल एग्स दिए थे उसके अगेंस्ट उससे 500 सिल्वर कॉइन्स डिमांड करता है. सो अमीन रिफ्यूज़ टू पे सच अ लार्ज सम. अमीन इनकार कर देता है इतने पैसे देने से. सो द मर्चेंट टुक हिम इन अ कोर्ट. वो से कोर्ट ले जाता है मर्चेंट. सो ठीक है. द सिचुएशन इसकी कोर्ट में जज एंड द मर्चेंट वेटेड फॉर द अमीन. वेट कर रहे होते हैं अमीन के लिए, बट देयर इज़ नो साइन ऑफ अमीन. लेकिन अमीन नहीं आता. सो व्हेन द अमीन केम द जज आस्क्ड हिम दैट व्हाई आर यू लेट एंड व्हाट डू यू वांट टू से. जब अमीन आता है तो आप जज उससे पूछते हैं कि भाई आप कहाँ थे और क्यों लेट आए. सो अमीन कहता है माय लॉर्ड, before coming here I had a plate of boiled beans and I planted them in my garden for a good crops. ठीक है. सो वो ये बताता है कि मैं लेट इसलिए हुआ हूँ कि यहाँ आने से पहले मेरे पास बॉयल्ड बीन की, उबले हुए बीज की एक प्लेट थी और वह मैं अपने यहाँ गार्डन में लगा रहा था. सो द जज said to him, fool, how boiled beans grow into a क्रॉप्स. के बॉयल बीन, उबले हुए बीज से कैसे फसलें जो होती हैं वो ग्रो करती हैं. सो द अमीन रिप्लाई टू द जज दैट यस माई लॉर्ड. सो हाउ बॉयल्ड एग्स हैश्ड इनटू चिकन्स एंड क्रॉप्स इन हैन एंड कॉक्स. तो वो ये कहता है कि कैसे उबले हुए एग्स, यानी उबले हुए अंडे फिर कैसे जो हैं वो हैंस और कॉक्स बन सकती हैं, अंडे दे सकती हैं. सो दिस इज़ द वे हाउ अमीन won his case due to his intelligence. वो अपनी जहानत की वजह से अपना केस जीत जाता है. एंड मर्चेंट जो होता है वो केस हार जाता है बिकॉज ही शोज़ हिज ग्रीडनेस एंड ही वांटेड टू टेक हिज प्रॉफिट. उसे लगता है कि वो मैं अपना प्रॉफिट लेने के लिए वो उस पर गलत इल्ज़ाम लगाता है. बिकॉज बॉयल्ड एग्स डजंट हैश chickens, hens, eggs hatched and chicken and cocks. So this is the summary of the story. Now after reading this chapter, now we done some work from your workbook. So all of you open your workbooks now. So now this is your English workbook, and after the reading of the chapter we solve the exercise of this chapter. So open your workbook page number. This is your workbook page number 2. First question is सर्कल द करेक्ट मीनिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स. हमने ये जो कुछ मीनिंग्स वर्ड्स थे इनके करेक्ट मीनिंग्स के सर्कल्स को कलर्ड किए थे. लाइक ड्रॉट मीनिंग अ लॉन्ग पीरियड ऑफ वेदर विदाउट रेन. मर्चेंट मीन्स समवन हु बायज एंड सेल गुड्स. डेट मीन्स एनीथिंग दैट वन पर्सन ओज टू another. Complain means to talk about things that are worrying.
Flock means a group of birds, sheep or goats that live, travel and feed together. And the next question is use any two of words in your sentences. So from here you choose just two words, write here and make your own sentences. Now turn the page number. On page number 3, this is the question about alphabetical order. So first of all, I'll tell you what is alphabetical orders. A, B, C order are called alphabetical order. A, B, C में जो order होता है यानी A, B, C up to Z, ये जो sequence wise हम चलते हैं इसे हम alphabetical order कहते हैं. So for solving this question, इस question को solve करने के लिए आप सब ठीक है फाइंड द वर्ड्स इन दिस हेल्प बॉक्स दैट हु फर्स्ट हु स्टार्टेड विद द ए, वो वर्ड सर्च करेंगे जो ए से स्टार्ट होता है एंड राइट देम ऑन द नंबर फर्स्ट. सो हेयर इज़ अ वर्ड अपेयर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम ए. सो आप सबसे पहले फर्स्ट पे अपेयर्ड लिखेंगे. नेक्स्ट ए बी सी ऑर्डर में नेक्स्ट वर्ड आता है ए के बाद विच अल्फ़ाबेट कम बी. सो यू फाइंड द वर्ड दैट स्टार्ट फ्रॉम बी. अब यहाँ पे बी से वाला वर्ड ढूंढेंगे. हेयर इज़ नो वर्ड दैट स्टार्टेड फ्रॉम बी. नाउ द बी के बाद इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर सी कम्स. अब आप सी वाला वर्ड ढूंढें. सी वाले वर्ड कंप्लेन एंड क्रॉप्स टू वर्ड्स हैं इन में जो स्टार्ट होते हैं सी से. इन दिस सिचुएशन वेयर both words started from same alphabet C and C, then you look at the next alphabet. So अब next alphabet को देख के decide करेंगे कि which come first. So A B C read करें और R पहले आएगा या O, आप decide करें जो पहले आएगा इन दोनों में से. दो this word right here for on number 2, like O पहले आएगा, so you write complain first and then crops. देन इसी तरह आप डी वाला वर्ड लिखेंगे. देन डी के बाद ई वाला वर्ड मिसिंग है, एफ वाला नहीं है, जी वाला नहीं है, फिर एच वाला वर्ड है. सो लाइक दिस आप अपना अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर कंप्लीट करेंगे. सो नाउ पेज नंबर इसके बाद हमने 4 किया था. नाउ टर्न द पेज नंबर इज़ 4. सो दिस इज योर पेज नंबर 4 एंड पेज नंबर 4 पे हियर आर सम क्वेश्चंस अबाउट दिस स्टोरी. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ वाई डू यू थिंक अमीन बॉट हार्ड बॉयल एग्स. आपके ख्याल में उसने हार्ड बॉयल एग्स क्यों ख़रीदे थे? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ईट एग्स ड्यूरिंग हिज जर्नी. क्योंकि अपने सफ़र के दौरान वो एग्स खाना चाहता था. 500 silver quarters is a lot of money. Why did the merchant ask for so much money? इतने ज़्यादा मनी मर्चेंट ने क्यों डिमांड किए थे? बिकॉज ही वॉन्टेड टू टेक हिज प्रॉफिट, क्योंकि वो अपना प्रॉफिट लेना चाहता है. नेक्स्ट वन इज़ कंपेयर अमीन फीलिंग एट द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी एंड हिज फीलिंग एट द एंड ऑफ द स्टोरी. आप सबको पता है कि बिगनिंग में वो सैड होता है बिकॉज उसने अपनी क्रॉप्स जो होती हैं वो खो दी होती हैं, एंड एंडिंग में वो हैप्पी होता है बिकॉज ही वॉज अ रिच मैन नाउ, क्योंकि वो रिच मैन होता है. Now on next page number 5 पे some questions recall of the story है. Like what was the story about? The story was about Amin and the eggs. All of you know that कि ये story Amin and the eggs के बारे में थी. When did the story happen? कब होती है? When there was a drought, जब कहत साली होती है उनके गाँव में. Where did the story happen? कहाँ पर होती है? In a village. Who was in the story? इस story में कौन कौन होता है? Amin, merchant and judge. Who was the problem? What was the problem in the story? इस स्टोरी में क्या प्रॉब्लम होता है? द प्रॉब्लम वाज अबाउट द डेट इशू. कर्ज का प्रॉब्लम होता है, उधार का, जो उन्होंने 12 एक्स उधार लिए होते हैं उसका प्रॉब्लम होता है. ओके, सो दिस इज़ आवर यूनिट नंबर 1. सो नाउ आफ्टर कंप्लीटिंग द वर्कबुक वर्क हमने सम वर्क टेक्स्ट बुक पेजेस के थे. लाइक पेज नंबर 13 पे लर्न टू रीड 1 की हमने सम क्वेश्चंस जो ये आफ्टर दिस टेक्स्ट बुक पेज नंबर 17 से हमने किया था लर्न स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन, थीव, बिलीव, रिसीव, सीलिंग, फॉरेन. इसमें हमने बताया था कि आई जब साथ आता है तो वो लॉन्ग ई की साउंड प्रोड्यूस करता है. इसके बाद वर्कबुक टेक्स्ट बुक पेज नंबर 18 से हमने किया था फिर इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखा था. एंड देन हमने किया था लर्न प्रोनाउंसिएशन. इन वर्ड्स में से जिनकी साउंड आप जो प्रोनाउंस करेंगे डिफरेंट होगी उस वाले को हमने सर्कल किया था. लाइक सोप, शुगर, सैंड. सैंड एंड सोप की जो साउंड है वो एस वाली है, सेम साउंड है, बट शुगर की साउंड डिफरेंट है. सो सर्कल किया था हमने इस वर्ड को. सो लाइक दिस आपने ये पूरा बॉक्स कंप्लीट करना है. सो आफ्टर दिस हमने लर्न टू स्पीक पेज नंबर 19 से किया था. इसमें हमने बताया था हाउ टू मेक अ जैम सैंडविच, हाउ टू चेंज रिफिल इन योर पेन, एंड हाउ टू पैक योर स्कूल बैग, कि आप अपना स्कूल बैग कैसे पैक करते हैं, एंड हाउ टू पुट ऑन योर स्कूल यूनिफॉर्म, और आप अपना स्कूल यूनिफॉर्म कैसे पहनते हैं. So hope this is your all work. So all of you hope you understand the story and wish you all the best. Allah Hafiz.